अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन इन कोचिंग सेंटर बायोलॉजी पेपर क्लास 9। इस पेपर में हमारे पास सेक्शन ए है जिसमें हमारे पास तमाम एमसीक्यूज गिवन है, फिर सेक्शन बी है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, देन सेक्शन सी में हमारे पास डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम तमाम चीज़ों को कवर करेंगे और एमसीक्यूज में आप लोगों को हल करवाती भी जाऊंगी ताकि आपके लिए एग्जाम्स में अच्छी तैयारी हो सके। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन ह्यूमन हार्ट ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम लंग्स फर्स्ट ड्रेन्ड इनटू, so the answer is option number A, left atrium. Number 2 is all sources of calcium except, so the answer is option number A, red meat. The movement of organic material foods take place through, so the answer is option number D. Deficiency of vitamin D causes, so the answer is option number D, rickets. Next हमारे पास है, quantitative observation is the use of, so the answer is option number C, equipment. Goiter is a condition in which dash glands became enlarged, so the answer is thyroid. Option number C is correct. Next है, the biological name of cat is, so the answer is option number C, Felis catus. I think ये वाला हमारे पास repeat हो रहा है. Quantitative observation is the use of, so the option number C is correct, equipment. In four kingdom classification, kingdom Metaphyta includes all the following except, so the answer is option number A. Phenomena in which pair of homologous chromosomes fails to separate called, so the answer is option number B, non-disjunction. नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जो कि लास्ट सवाल है हमारे पास एमसीक्यूज का 15. द पॉइंट वेयर द एंजाइम्स इज मोस्ट एक्टिव इज नोन एज, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिमम पीएच. ये हमारे पास तमाम एमसीक्यूज कवर हो गए. अब हमारे पास सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जिसमें हमने 8 अटेम्प्ट करने हैं. पहला हमारे पास है, डिफाइन एनी 3 ऑफ, ठीक है. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको चॉइस दी हुई है और यहाँ पे सिर्फ 3 को डिफाइन करना है, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, सोशल बायोलॉजी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, और हमारे पास डिफरेंट गिवन है, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, मैग्निफिकेशन है और टेक्सोनमी है. ओके और इसमें हमारे पास आगे गिवन है, और में राइट डाउन द एमर्जेंस postulates of cell theory, write down 3 differences between prokaryotic and eukaryotic cell, plants and animal cell, or arteries and veins, or photosynthesis and respiration, or mitosis and meiosis, and light and electron microscope. Define blood, name the component of blood, write down any 2 function of blood. Next is draw a neat and label diagram of smooth or cardiac muscle or cell cycle or LS or villus. Write down any 3 characteristics functions of enzymes or liver or vitamin or oral cavity. Write down the contribution of any 3 Muslim scientists in the field of biology. Write importance of biodiversity or taxonomic hierarchy or mitosis or transpiration. Name the organs found in circulatory, nervous, respiratory, excretory, and reproductive system. Outline the classification of plant tissues. Define any 3 types of chromosome depending upon position of centrome. What is binomial nomenclature? Write down the biological name of man, frog, pea, and rose. Describe disease caused by deficiency of protein or minerals. What is bioenergetics? Describe the role of ATP. Describe the process of uptake of water from soil and mineral transport. What are the steps to solve biological problem? Define them. ओके यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सवाल गिवन है तो आप इसको चेक कर सकते हैं आराम से. हमारे पास कुछ डायग्राम्स के सवाल भी हैं जो कि जाहिर है आपके पास सेक्शन बी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने डायग्राम को भी जरूर देखना है.
तो अगर आप चाहें कि आप क्वेश्चन के साथ डायग्राम अगर इंक्लूड होती है तो आप वो भी बनाए, ताकि आपके पास अगर टाइम है तो वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा। सेक्शन सी में हमारे पास डिटेल क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, जिसमें हमें अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चन आंसर्स। पहला हमारे पास है एक्सप्लेन ब्लड डिसऑर्डर्स और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। Why is mitosis? Explain the mechanism of mitosis or meiosis along with diagram. Explain the mechanism. अच्छा, जहाँ along with diagram है ना, वहाँ बात ये है कि आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आता है और डायग्राम नहीं आती, तो आपके पास कुछ मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होंगे। तो लाजमी के तौर पे अगर आप ये सवाल को अटेम्प्ट करें तो आपके पास जरूरी है कि आप उसकी डायग्राम भी बनाएं। What is tissue? Describe animal tissue or plant tissue in detail. What are vitamins? Describe types of vitamins. Describe environmental hazard related to chemical fertilizers. Or with the help of diagram, explain the structure of cell membrane or nucleus. Explain different modes of autotrophic or heterotrophic nutrition in details with examples. Define photosynthesis. Name two phases in photosynthesis and describe any one of them. Draw a neat label diagram of human heart or digestive system. Define conservation of biodiversity and also write its causes and effect. Okay, मैंने इसमें कुछ सवाल स्किप कर दिए हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है। हमें आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग उसकी पूरी तैयारी कीजिए। जैसे मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा दी, तो आपके पास एक टाइम जो लिमिट है वो आपके पास बच गया। तो आप कोशिश ये करें कि जितना हो सके आप इन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, सिर्फ इसको ही नहीं देखना बल्कि आपने पूरी तैयारी करके जानी है। टारगेट पेपर का बेसिकली मकसद यही है कि अगर आपने तैयारी नहीं की अभी तो आप इसको देख के आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी है तो आप इनको लाजमी तौर पे देखें, ज्यादा देखें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ इनकी सवालों की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है, बल्कि आप लोगों को पूरी बुक की तैयारी करनी है, अच्छे से पेपर की तैयारी करनी है, और इन जो क्वेश्चन आंसर टारगेट पेपर में इंक्लूड है उसको लाजमी ज्यादा याद करना है। ठीक है, तो टारगेट पेपर का असल मतलब भी यही है कि टारगेट ये हो कि आपने इन जिन चीजों को कर चुके हो या आपकी बुक जो है वो कवर हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम तमाम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तमाम सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 10th के।